Hello everyone. Hi, I'm Purva Kakre, your host for today's live talk show through Innovative Hub. So our guest speaker is Bhomik Sen. He soon will be connecting with us. He is a coach. He is a public speaking trainer. He is an author of a book, Hidden Secret of Super Learners. So I'm waiting for him to connect it. Stay tuned. Hi, Bhomik. Hi. How are you? Hello, I'm good. How are you? I'm good. I'm good. There was some connectivity issue and we couldn't connect earlier. So welcome. These technical glitches are part and parcel of our life. It seems now, right? So Exactly, exactly. So I would love to introduce to you. Bhomik is an sure. author. He's a mindsetter, a memory coach, a public speaking trainer, and a Texas speaker. So Bhomik, would you like to tell us about your book which you have written? Yes, definitely. Thank you, Purva, for introducing me. So, guys, my name is public speaking trainer, a TEDx speaker, and for last 10 years, I've been enabling students with my confidence building and public speaking workshops. And specifically, अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों के बारे में, तो for last 5 years, I'm acting as an academic enabler, wherein I'm helping students to tap into the unlimited potential of their mind to become super learners, right? So recently, I've published this book, which is called Hidden Secrets of a Super Learner. uh, this book not only talks about the fantastic memory techniques and advanced strategies, बट ये आपको ये भी बताता है कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज में प्रोडक्टिव बन सके, किस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन को काबू कर सके, और जिस तरह से आई थिंक पूर्वा जी आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि आज की डेट में बच्चों के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं जो अनरिजॉल्व पड़े हैं, राइट? तो उन सब चैलेंजेस को ये बुक कैटर करती है। So, how you started your journey with this as an author, then mindsetter, a memory coach? So, how was your Yeah. journey started? So to be very frank, I think 10 years back, in fact उससे भी कहानी बहुत पुरानी है, in fact पूरा चकनाचूर हो गया था उस दिन, and that is when I realized that पब्लिक स्पीकिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर। और उसके बाद फिर I joined a public speaking course back in 2002, and slowly and steadily I gained confidence. I came out of that particular bad incident which happened, and then in 2008 I started this journey as a public speaking coach. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10-12 सालों से, और उनके कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा हूँ मैं विद माय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स एंड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाता है, लेकिन बाद में मैंने ये भी रियलाइज किया कि पब्लिक स्पीकिंग से उनका कॉन्फिडेंस ठीक हो रहा है, बट Exactly. कुछ ना कुछ एकेडमिक चैलेंजेस हैं जो बच्चे अभी भी फेस कर रहे हैं, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड देन बैक इन 2015-16 आई लर्नड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और वहीं से ही आई पिक्ड अप दीज मेमोरी मॉड्यूल्स, राइट? तो मेमोरी की जो हमारी मोडालिटीज, हमारे ब्रेन की मोडालिटीज होती है जो मेमोरी बिल्डिंग में हेल्प करती है आपको, तो दोज वर द थिंग्स व्हिच आई पिक्ड अप, and then I started the journey as an academic. And recently, during this lockdown, I got this fantastic opportunity, and I penned down all my thoughts in form of this book.
which is hidden secrets of the city. So, Bhumik, I would love to know, like, what challenges these kids are facing nowadays. What challenges they are facing? Hmm. Because we are coming Right, to right, this right. segment where we are covering all Hmm. these topics. So, I just want to my viewers to know about what we are Sure. giving them in this webinar. So I think अगर आप challenges की बात करें मेरे हिसाब से we all are surrounded with challenges, right? But then specifically if I talk about students, specifically these teenagers, right? तो कितने ही बच्चे होते हैं जिनको अपना कंटेंट याद नहीं होता, right? They are not able to memorize stuff. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हम उसको रिटेन नहीं कर पाते ज्यादा टाइम, राइट? और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं याद भी कर लेते हैं, रिटेन भी कर लेते हैं, बट देन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना एकदम से पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि अरे क्या हो रहा है। On और the paper, right? They become राइट राइट और मजे की बात ये है, राइट और मजे की बात ये है कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और वापस अपने घर में जाते हैं तो उनको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स याद होते हैं, राइट? सो ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारी परेशानियां, चैलेंजेस जो ये फेस कर रहे हैं बच्चे, उसके ऊपर जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं हमारा डिजिटल इंटरेक्शन बढ़ गया है कोविड के बाद, एंड सो हैव दीज डिस्ट्रैक्शंस एज वेल, राइट? तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में, सबसे बड़ा विलन है जो हमारे पास बैठा हुआ है। और इसके अलावा भी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक खोल के बैठते हैं, बच्चा बुक खोल के बैठता है, अंदर से आवाज आती है छोड़ यार कल पढ़ेंगे, राइट? प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सिलेक्टिव इंटरेस्ट होता है स्टडीज में कि किसी को साइंस पसंद है तो मैथ्स पसंद नहीं है, किसी को मैथ्स पसंद है तो इंग्लिश पसंद नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट को भी लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, चैलेंज रहते हैं। तो ये सब चैलेंजेस स्टूडेंट्स डेफिनेटली, जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से, ये कुछ कॉमन चैलेंजेस है जो बच्चे फेस करते हैं। See, you talk about distraction. One of my friend's son of the WhatsApp message or something, anyone's coming or a sound also. एक छोटा सा sound भी उसको distract कर देता है. So, what do you like to say about it? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूर्वा जी आपने यहाँ पे उठाया, जैसे कि आपने बताया कि एक छोटा सा सॉन्ग भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ, सपोज कीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, राइट? दिस इज माय टास्क एट हैंड, जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और एकदम से कोई सॉन्ग बजा, कोई फेसबुक की नोटिफिकेशन आई, कुछ भी आया, तो एकदम से मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। अब यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। मतलब अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको स्ट्रैटेजीज तो पता चल जाएंगे, आपको तरीके पता चल जाएंगे डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम करना है, लेकिन उससे भी पहले अगर हम माइंडसेट पे काम करें यहाँ पे, तो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप मेरे को अलाउ कीजिएगा 2 से 5 मिनट, तो मैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, जो कि आप अपने फ्रेंड को भी समझा सकते हैं, देन दे कैन इम्प्लीमेंट। और जितने भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, वो भी इस चीज को लागू कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है डिस्ट्रैक्शन। डिक्शनरी अगर हम खोल के देखें, राइट, उसमें डिस्ट्रैक्शन क्या लिखा होता है? डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग which prevents me to pay my full attention to the task at hand. ये मेरा टास्क एट हैंड है, राइट? इस पे मेरे को पूरी अटेंशन देनी है, मेरे को इस पे पूरा फुल फोकस देना है, लेकिन समथिंग, जैसे कि मेरे मोबाइल का नोटिफिकेशन, मेरे दोस्त का फोन आ गया, कोई सॉन्ग बज गया, कोई बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनकी आवाज आ गई, समथिंग, राइट? समथिंग जो आके मेरे को इस टास्क पे फोकस नहीं करने देगा, वो डिस्ट्रैक्शन है। ये है डिक्शनरी में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है पूर्वा जी? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, वो इस समथिंग के पास है, वो इस एक्सटर्नल समथिंग के पास है। हमारे पास नहीं है पावर, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत वल्नरेबल है। पावर क्योंकि समथिंग एक्सटर्नल के पास है, वो कभी भी आके हमें डिस्टर्ब कर देगा और हम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक हैक देता हूँ आपको, छोटा सा ट्विस्ट देता हूँ कि लेट अस सपोज मैं यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग चेंज कर देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट समथिंग that prevents us to give full attention to the task at hand, but distraction is my response. Distraction is my response to something which prevents me to have full attention to the task at hand. So this is अब ये डेफिनेशन चेंज करने से देखिए कैसा शिफ्ट आया एनर्जीज में, कि पावर किसके पास आ गई? पावर आपके पास आ गई कि भाई मेरा रिस्पॉन्स है। अगर एक फेसबुक की नोटिफिकेशन आई है मेरे मोबाइल पे, तो मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं उसको देखूं, उसको अटेंड करूं या ना करूं। पावर किसके पास आ गई? आपके पास, मेरे पास आ गई। कोई गाना बज रहा है मेरे ऊपर, मेरे को पता है मेरा इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा,
कि मैं ईयरफोन्स लगा लूं, ईयरबड्स लगा लूं और बाहर का एक डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाए। करेक्ट। राइट, सो और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, तरीके तो मिल जाएंगे, कोई भी बता देगा। लेकिन जब तक हम ये बिलीव को चेंज नहीं करेंगे ना, डिस्ट्रैक्शन को लेकर जो एक हवा बना हुआ है, उस बिलीव को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, चीजें बदलना मुश्किल है। क्योंकि एनएलपी में हम कहते हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स है वो ड्रिवन है हमारे बिलीफ सिस्टम से। एक बार ही हमारे माइंड में ये बिलीफ आ गया ना कि डिस्ट्रैक्शन इज नॉट समथिंग बट डिस्ट्रैक्शन इज माय रिस्पॉन्स टू समथिंग, तो आप इसको बहुत आसानी से कैटर कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और ये आई होप इट वाज हेल्पफुल, और ये एक मेमोरी माइंड हैक है जो काफी बच्चे इससे फायदा उठा चुके हैं। Absolutely. The new definition of distraction I got is absolutely connecting. So many राइट राइट parents will connect with this kind of a definition which you have given, because many parents are श्योर facing श्योर this kind of a thing. And ये सारी प्रॉब्लम फेस करते करते वो पेरेंट्स भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, एंड देन देयर इज अ वेरी स्ट्रेसफुल atmosphere in the house. So I राइट would राइट say how you can like what should be done with the parents or the kids, what they should do to lessen the stress, and how they आई थिंक uh, आई थिंक अगेन from this. जैसे आई थिंक अगेन जैसे चैलेंजेस की बात करी, ये भी एक बहुत बड़ा आज की डेट में चैलेंज है। इट इज अ वाइड टॉपिक, राइट? एंजाइटी और स्ट्रेस, इट इज अ वाइड टॉपिक, इट कैन नॉट बी प्रॉब्ली कवर्ड इन दिस फेसबुक लाइव। बट यहाँ पे आई थिंक द लीस्ट थिंग, मैं कहूंगा लीस्ट थिंग और द मिनिमम थिंग व्हाट कैन डू एनी इंडिविजुअल कैन डू, दोज आर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड सुपर ब्रेन योगा। बच्चों के लिए सुपर ब्रेन योगा इज अमेजिंग थिंग, अमेजिंग थिंग। एंड इंडिविजुअल्स के लिए ऑब्वियसली बाबा रामदेव जी ने आज की डेट में योगा को और प्राणायाम को पूरे आई थिंक विश्व में फैला दिया है, पूरे वर्ल्ड में फैला दिया है। तो आई थिंक अगर आप 2 या 3 प्राणायाम भी कर लेते हैं 20 मिनट्स अ डे, जैसे कि कपाल भाती हो गया या अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, राइट? ये 3 प्राणायाम में ना आपके क्या करते हैं, आपके ब्रेन को, आपका ब्रेन स्ट्रेस में कब जाता है अगर हम इसको समझें, राइट? और उसको एक्टिव रखने के लिए आपको ब्रेन सिर्फ एक चीज मांगता है आपसे, वो है ऑक्सीजन, वो है प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, राइट? और अगर आप मेरा मानना ये है कि अगर आप 30 डीप ब्रीथ्स ले लेंगे एक बारी में, 30 डीप ब्रीथ्स एक बारी में ले लेंगे, डीप ब्रीथ का मेरा मतलब है बेली तक, बेली पूरा फूलना चाहिए बाहर तक, राइट? और बेली तक अगर आप डीप ब्रीथ ले लेते हैं, 30 डीप ब्रीथ्स भी ले लेते हैं, दैट विल हेल्प यू in curbing or facing that particular situation in a much better, right? तो जो बेसिकली चैलेंजेस आते हैं, हमारा माइंड फ्लाइट या फाइट मोड में जाता है, वो स्वाभाविक है, वो हमारा ब्रेन बना ही इस तरह से हुआ है, राइट? बट उस चीज को रोकने के लिए ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि ऑक्सीजन की एक्टिविटी बढ़ गई ब्रेन में, दैट विल हेल्प। और बच्चों के लिए आई थिंक यहाँ पे सुपर ब्रेन योगा है, जैसे कि, और सुपर ब्रेन योगा ना कोई कोई नई चीज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात कहूँ। मतलब इसको सिर्फ एक नाम दे दिया गया है। अगर हम अपने चाइल्डहुड में वापस जाएं, हमसे जो हमारे टीचर्स उठक बैठक करवाते थे, Correct. सुपर ब्रेन योगा की, तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट ईयर को इस तरह से पकड़ेंगे, आपका पकड़ेंगे इस तरह से, राइट? देन यू डू सम स्क्वाट्स, राइट? यू डू सम स्क्वाट्स, और नीचे जाते हुए आप इनहेल करें और ऊपर आते हुए आप एक्सहेल करें। तो आई थिंक ये Again, दिस इज समथिंग for yoga only they are doing, right? exactly right. So this is actually which is with something, right और left brain को पूरा synchronize कर देता है आपके। तो this is a fantastic exercise to do to relieve stress at a very basic level, So this was a punishment given to kids earlier. Like आप yes, जा रहे हैं और ये अब उस punishment को ही बच्चों को, हाँ, right अब उस punishment को ही हमें 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 कहीं ना कहीं अपना lifestyle बनाना पड़ेगा, if you want to do better. So any other learning styles you want to tell? राइट, आई थिंक लर्निंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो बच्चों के ना, जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, राइट? तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब होता क्या है कि टीचर तो एक ही तरीके से पढ़ा रहा है आपको क्लास में, राइट? टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख के या ऑडिटरी जैसे वो बोल के ब्लैक बोर्ड पे लिख के विजुअल से वो पढ़ा रहे हैं, राइट? बट हर बच्चे का लर्निंग मतलब जिस तरह से वो परसीव करता है इंफॉर्मेशन को, वो अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास में बैठ के लेक्चर सुनेंगे और उनको सब कुछ याद होता है,
Correct. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विजुअल मतलब देख के पढ़ के कुछ डेमोन्स्ट्रेट कुछ कुछ विजुअल्स देख के कलर कोडिंग करके नोट्स को उस तरह से याद होता है, वो होते हैं विजुअल लर्नर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीजें करके, चीजें जब तक वो प्रैक्टिकली कर नहीं लेते, एक चैप्टर पढ़ लिया समझ आ गया, उसको दोबारा जब तक वो पढ़ा नहीं देते उनको अच्छी तरह वो चीज याद नहीं होती, राइट। सो देखिए, हमें ये समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक के अपने लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक एंड विजुअल, राइट। तो लेकिन टीचर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या बुक से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक ही फॉर्म में मिल रही है। तो आप किस तरीके से बच्चे को ये समझ आ जाए कि यार मैं कौन से तरीके का लर्नर हूँ। अगर बच्चे को ये अवेयरनेस आ जाए कि मैं विजुअल लर्नर हूँ तो मैं ऑडिटरी को छोड़ दूंगा, या फिर मेरे को ये पता है कि मेरा विजुअल स्ट्रेंथ है तो मैं विजुअल तरीके से पढ़ने की ज्यादा कोशिश करूंगा और थोड़ा एफर्ट लगा के मैं ज्यादा अचीव कर पाऊंगा। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क कोई बाहर की चीज नहीं है, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। Absolutely. ठीक है, राइट। So if they want to learn more, they want to listen to you more, they should attend the summit because you are giving such a skillful knowledge and a learning to all of them. पेरेंटिंग के बारे में बोलो, चिल्ड्रन के बारे में बोलो, किड्स के मेमोरी पावर के बारे में बोलो, कंसंट्रेशन, दे ऑल कैन गेट द आंसर्स थ्रू दिस वेबिनार. So I डेफिनेटली। suggest everyone should attend this webinar and they can listen to you, your thoughts, your experiences, your learnings. So thank you, Bhumik, for coming to our show. Thank you for coming श्योर। to our talk show. And definitely, Purva, thank you so much for having me. And towards the end, I would like to, tell the audience as well, ki do come and attend this summit, guys. I'll be sharing the many helpful techniques. मैं tips नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं techniques और strategies बताऊँगा आपको. मैं techniques और strategies बताऊँगा which can help you to become a super learner, guys, and have an unbeatable mindset. किस तरह से आप थोड़ा सा काम करके ज़्यादा achieve कर पाएंगे. And yes, I will be having a free gift for you guys, जिसको लेकर आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की वोकैबुलरी को आप 100 गुना बेटर कर सकते हैं. यू विल बी बिकमिंग अ सुपर पावर वोकैबुलरी लर्नर using the technique I'll be telling you in that webinar, in that talk of mine. All right, and you will be going away with that one free gift, one free ebook from my side as well. All right, guys. So thank you, Bhumik, for coming. Thank you for coming and telling us the facts. And they will come, obviously, they will join you in this webinar. Thanks a lot. All right, thank you so much, Puraji. Thank you. Bye bye. God bless. Thank you. Bye bye.